today I am going to show flip over of all my artwork from new to old, everything. So I will explain also how I have been doing it. So this is the first art I'm explaining. This I have done with as you can see, it has been done with balloon dabbing that I've already shown in one of my videos in my tutorials, and you can just go to my channel and check. I will link I'll put the link in the description box. फिर ये आपको पता ही है, this you already know. This is also balloon dabbing, but this I have used 3 colors. One is purple, one is blue, in fact 4, white is also there. So ये balloon dabbing जो है ये purposely balloon dabbing के लिए नहीं बनी है. This is not because I wanted to make this print. It has been made because we were already doing some real balloon dabbing prints, and the extra color we had to put it here. So it has given a nice texture. You can use it for your bookmaking or anything. I'll be showing you how to make your book very soon. This is the real balloon dabbing which I did with 3 to 4 colors. You can write down in the description box what all colors you see. I'm not going to explain. So this is going to be a poll for you. So you just write it in the description box and maybe you will receive a goodie. This is another balloon dabbing, and this has got 3 to 4 colors. Generally I take 3 to 4 colors only. So you go with 3 to 4 colors only. अगर आप if you take less colors, कम colors लोगे तो उतना ज़्यादा beautiful effect नहीं आएगा. ठीक है, तो ये भी आपका हो गया. अभी मैंने सिर्फ ये छोड़ा हुआ है. This is still incomplete. Generally I do the complete work after I get these type of prints. So this is also another one. Here I've taken only 3 colors. And this is the finished product. See, after finishing the balloon dabbing, you can see I have used two patterns. This is the purple pattern and this is the yellow patterns I've used. And in between, wherever there was space, you can also use it this way. I have filled it with my simple doodles like circles and all that. Okay, so I'll show you another one. I just like this print the most. See this. This is so beautiful. Today's video is going to be very long, so be prepared for that. This is another one, and you can see how I have covered the white area. And this is also a plain one. Still I have to add some doodle work around this wherever I see white. और ये आपने देखा, ये जो है ये ऐसा ही था. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इनको फ्लावर का एक लुक दिया, एक फ्लावर आउटलाइन दिया, एंड देन आफ्टर द फ्लावर आउटलाइन आई कवर्ड द रिमेनिंग एरिया विद गोल्ड. सो ये ऐसा लुक आ गया. ओरिजिनली दिस वाज आल्सो balloon dabbing like this. Okay, now you see this. This is how you can convert your painting into masterpiece. अब ये भी ऐसे ही है. ये तो मैंने एक्चुअली ये दिस इज़ नॉट बैलून डैबिंग, ये था फ्लूइड आर्ट. मैंने जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा एक्रिलिक पोर किया इसमें और उसको मैंने ब्लो किया तो ये बन गया. और फिर साइड में मैंने जो है ये फ्लावर का फ्री हैंड स्केचिंग करी तो ये ऐसा बन गया. तो अब आप इसको या तो आप फ्रेम कर दो, या तो फिर आप इसको अपना बुक का कवर बना दो या डायरी का कवर बना दो, और यू कैन वार्निश इट एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट एज योर वॉलपेपर फॉर द स्मॉल स्टडी टेबल्स. ये दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल आर्ट. ये मैंने जो बनाया है, दिस इज़ नॉट पेंट. पेंट इज़ ओनली व्हाट यू कैन सी द ये जो सर्कल्स और ये लाइंस हैं, ये मैंने खुद होममेड स्टैम्प से बनाई है. अदरवाइज़ ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा टिश्यू पेपर है. टिश्यू पेपर आर्ट बुलाते हैं इसको. आपको जस्ट टिश्यू पेपर को अपने इन योर स्टाइल यू कैन जस्ट कट इट इनटू डिफरेंट शेप्स और आप उसको स्टिक करते जाओ जहाँ पे आपको लगे कि कोई पैटर्न आएगा. तो ये आपका टिश्यू पेपर आर्ट हो गया है रेडी.
Okay, so now this is another art. If you can see all the bright colors, ये जो हैं ये पेपर है, black and magenta are paper, rest is all modern art. ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ये मैंने जैसे मैंने आपको सिखाया था एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कैसे करते हैं, वो आप मेरा वीडियो चेक करोगे आपको पता चलेगा. वो मैंने सर्कल्स बनाए हैं और कुछ मैंने इसमें टेम्पलेट्स बनाए हैं. तो ये मैंने इसमें ब्राइट कलर्स के जो मेरे वेस्ट पेपर थे उसको मैंने चिपका के इसको डिज़ाइन दिया. इट हैज़ बिकम वेरी ब्यूटीफुल. यू कैन कट इट इनटू हाफ एंड यू कैन मेक 2 पेंटिंग्स ऑफ सेम डिज़ाइन. ये है लीफ प्रिंटिंग, जैसा कि आप देख रहे हो. सॉरी उल्टा है. ये लीफ प्रिंटिंग सिंपल सा मैं नीचे से लीफ का एक स्टेम लेके आई थी विद द स्टिक. और ये मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बताया. आई थिंक सो मेनी वीडियोज आई विल हैव टू शेयर विद यू ऑल. द लिंक आई विल शेयर. एंड दिस द एक्चुअली मैंने ये 2 बनाया है एंड आई डोंट वांट टू कट इट इनटू हाफ बिकॉज आई हैड प्लान्ड ऑफ मेकिंग अ book cover with this, you know. Basically inside I wanted to put some papers, my handmade the handmade papers I have, so that I can create some artwork in that. So ये book का cover है. ये एक random fluid art मैंने बनाने की कोशिश की थी मगर ये बना नहीं. But still I like the pattern and I'm going to definitely make something on it. ये patterns हैं. ये I have made it with the toothpick. आफ्टर आई पेंट करने के बाद मैंने इसके ऊपर से ऐसे सर्कुलर पैटर्न बनाया. ये भी पैटर्न पेपर है. और ये ब्यूटीफुल सा जो है ये न्यूरोग्राफिक आर्ट है. न्यूरोग्राफिक आर्ट में मैंने थोड़ा सा वाइट कलर से डूडलिंग किया है और थोड़ा रेड यूज़ किया है. ये रेड जो यहाँ पे यूज़ किया तो ऐसे दांत जैसा लग रहा है. इट्स लुकिंग लाइक टीथ, यू नो, बट वॉट एवर आई लाइक्ड इट. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. After finishing with the doodling, my art is over. Only thing is I have to put little border around it. ये भी मेरा पुराना ये वाटर कलर आर्ट है. रैंडमली आपको वाटर कलर कहीं पे भी ऐसे स्प्रेड करना है और फिर यू नो थोड़ा करके, और उसके बाद आपको अपने लीफ के पैटर्न्स बनाने हैं. ये डिफरेंट लीव्स हैं जो कि मैंने किसी आर्टिस्ट के स्टाइल देखा था, बट आई मेड माई ओन पैटर्न्स. I like the idea, so I just copied it. Okay, but this is my all original. फिर ये है मेरा दूसरा न्यूरोग्राफिक आर्ट और इसमें मैंने जो है सिर्फ 2 कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लैक एंड रेड. और थर्ड कलर जो है वो ऑलरेडी इसमें था क्योंकि ये वाइट पेपर है. ये इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी आई वांटेड टू मेक सम आर्ट विद ब्लू एंड रेड, बट आई ड्रॉप दैट आइडिया बिकॉज आई फाउंड दैट रेड वॉज मोर इंटरेस्टिंग. तो ये मैंने बनाया है. पहले मैंने न्यूरोग्राफिक आर्ट का पैटर्न दिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो डिफरेंट डूडल्स बनाए हैं. इट टुक मी अराउंड 2 to 3 days, बट आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज मुझे कुछ काम चाहिए था जो कि मेरा जल्दी से ना ख़त्म हो और slowly, like, you know, it should get over. Every day I should have something to do. So these doodles you can see, I'll show you the close up. If you can see these doodles, ये बहुत intricate work है and it really took time. Even this is very intricate. तो ये काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में, मगर मुझे बहुत मज़ा आया and it is a very beautiful painting. So ये था मेरा flip through of the big paintings and this is the flip through of my art book जो मैं आपको बहुत जल्दी से दिखाने वाली हूँ क्योंकि आज इसका डे नहीं है. But still I just thought कि video is not very long, so I'll just show you. This is the one painting. This is the background is made with gouache color and फिर मैंने ये brush से जो है इसमें doodling करी है. Then second page is not ready. Actually it is this color, but I have some stencils which I will be using it for making an art piece, basically a masterpiece. Again this is a tissue paper art और ये फिर न्यूरोग्राफिक आर्ट है. ये जो बैकग्राउंड में आपको कलर्स दिख रहे हैं ये मेरे ऑलरेडी कलर्स मैंने करा हुआ था. जैसे मैंने आपको पहले फ्रंट पेज दिखाया था, ये ऑलरेडी किया हुआ था. मैंने इसमें दोबारा ऊपर से नहीं किया. फिर उसके बाद मैंने सिर्फ इसमें डूडलिंग करी है, नथिंग एल्स. ठीक है. और ये तो मेरा फेवरेट, दिस इज कोलाज आर्ट. दिस आई लर्नड ऑनलाइन फ्रॉम वन ऑफ द ब्यूटिफुल आर्टिस्ट. तो ये इसमें जितने भी पेपर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर पैटर्न पेपर्स एंड आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑन दिस. दिस इज ऑल्सो कोलाज आर्ट.
All these are pattern papers which I have made myself, and this is a beautiful painting. I just love this painting. If you see it closely, आपको मैं पास से दिखाती हूँ. See, can you see? These are all papers of a magazine. I have not painted anything apart from these circles. These are, ये जो circles हैं ये मैंने जो पैटर्न पेपर बनाए थे वो है. बाकी ये जो आपको पर्पल के ऊपर ऐसे स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं ये मैंने हाथ से किया. बाकी ये ऑल दीज आर कलरफुल बैकग्राउंड. दिस इज ऑल पेपर. दिस इज कोलाज आर्ट. आई मेड इट माई सेल्फ बाय स्टिकिंग पेपर्स. दिस इज ऑल्सो कोलाज आर्ट. बस इसमें जो ऊपर से दिख रहा है ये सारा कोलाज पेपर जो घर पे बनाए मैंने वो हैं. दिस लिटिल एंजल यू सी, somebody called it as insect, and I'm sure she must be watching this. This is not insect, please take it as angel. तो ये है. और ये मैंने मैप लगाया है इसमें. ये देखो यहाँ पे, इफ़ यू सी इट क्लोजली, दीज आर ऑल मैप्स. तो आप ऐसे अपने पेपर्स, कोलाज पेपर जो है ऐसे बना सकते हो. अगर आपको खुद नहीं बनाने हैं तो आप अपने मैगजीन में से कटआउट्स निकालो और फिर उसको करो. ये कुछ स्टिकर्स मैंने लगाए हैं जो कि मैंने प्रिंट आउट्स निकाले थे गूगल करके. ये भी ब्यूटीफुल सा कोलाज पेपर. ऑल द कोलाज पेपर आई मेड इट माई सेल्फ फ्रॉम द ओल्ड पेपर्स. रिसाइकिल करके बनाया है ये भी सारा रिसाइकिल करके पेपर कोलाज है. यू कैन सी मैप है यहाँ पे. और ये जो फ्लावर्स हैं ये मेरे बनाए हुए हैं. मैप एंड कोलाज पेपर. एंड दिस इज कम्प्लीटली मैप, बुक पेपर एंड द मैगजीन पेपर. इसमें कुछ भी बनाया हुआ नहीं. ये जो कोलाज पेपर मैंने बनाए थे थोड़े थोड़े बीच बीच में वो हैं. बाकी मैंने क्रेयॉन से इसको कलर किया. दिस इज़ अनदर कोलाज. यू कैन सी माउंटेन, ट्रीज, बेसिकली जंगल, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट. यहाँ पे है रिवर, ये भी रिवर. ये सारा जो है ये मैंने मैगजीन पेपर लगाया एक्सेप्ट फॉर these are collage papers which I made, and ta-da, it's over. So I just hope you have enjoyed each and every part of my video. This is also my hand printed paper. This I have made it with watercolor ink. ये ink patterns हैं. तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप ink patterns यूज़ करके ऐसे beautiful papers बना सकते हैं. Till my next video, see you, bye.